a very, very well-reasoned judge, and we'll have to wait and watch for the final order copy to come in to see as to what the court has said in its particular order, what are the reasonings that the court has given while turning down the appeal of the Muslim side. Definitely. And while you were talking to, and in fact, I was talking to Harishankar Jain ji, he looked quite affirmative. He said that we are going to fight this battle in the Supreme Court the way it was fought in the High Court as well. Now, what lies ahead for the Muslim court? Because I believe this is the second setback that has come to their way. Well, definitely, it's basically not even the second, but the third setback that has now come to them. Because remember, that first the Varanasi district court, allowed for these trains to actually take place in the Vyas Tehkana. Second, they knocked the door of the Supreme Court. The Supreme Court said, please go back to the Allahabad High Court, and the Allahabad High Court too. Now, for the has turned down their appeal for challenging that particular Jan 31 order, very, very clear and categorically has turned down any kind of a relief to the Muslim side. Next move is the Supreme Court. We'll have to wait and watch as to when that particularly happens. Definitely, Ananya, and we heard what the Hindu side had to say about this particular decision coming out of the Allahabad High Court. But have we heard from the Muslim side as well? What's going to be their next step, and if they are disappointed with the thing that has come out of the Allahabad High Court dismissing their plea? Well, I had tried to contact them, but nobody at this particular point is responding. So we'll have to wait and watch for a response coming in from them. But definitely, they would be, deliberating upon, exercising their next legal remedy. That is the topmost of the country. So we'll have to wait and watch as to how things pan out. But definitely, this day seems to be a very, very lucky one, a very, very great one for the Hindu side. Another order being secured in their favor when it comes to the whole Gyan-Vyapi dispute. The prayers will be continuing at the Vyas Tehkana by the Kashi Vishwanath Trust's priest. And definitely, this is a booster for the Hindu side. Their confidence would be high at this particular point of time. Whether or not a challenge is made to it, how will the challenge be responded to by the Hindu side? All these questions can only be answered with the matter of time. We'll have to wait and watch for these things to actually take place. Also, Ananya would like your help to understand the caveat that the Hindu side will be now filing in the Supreme Court against the Muslim side also. Well, definitely the Hindu side would be filing a caveat, requesting the top of the country that no, if at all there is any kind of a challenge that is particularly made to this order, then the Hindu side is also heard before passing of any kind of a relief. So that is what the caveat basically means. Is very, very clearly and categorically, we'll have to wait and watch as to how, whether or not, when will this caveat be filed and how will the Muslim side will also be challenging this particular order before the Supreme Court of India. And now the puja, archana and the religious activities will continue to happen there at the Vyas Tehkana. Right, Ananya, if I'm not wrong? Well, definitely, the puja will continue at, in fact, the Allahabad High Court. It will take time before, in fact, the Vyas Tehkana puja will continue. And definitely, clearly and categorically, this order's last challenge remains to be before, in fact, the topmost of the country. Will have to wait for that particularly to happen. But very, very clearly and categorically, at this point of time, this is a confidence booster for the Hindu side. This is an order that has again come in their favor, and both the Varanasi District Court and stay with us. We have petitioner Manju Vyas ji joining us on the broadcast. Manju ji, thank you so much for talking to us. ये जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन सुनाया गया है, एक बिग विक्ट्री की तरह देखा जा सकता है क्या ये हिंदू साइड के लिए, और एक मुस्लिम साइड के लिए एक तरीके से ये एक हार हुई है तीसरी बार उनके लिए? देखिए 93 तक तो हमारी पूजा का हक अधिकार हमसे छीन लिया गया था। 93 तक हमारी पूजा हो रही थी, उसके बाद उन्होंने हमारा हक अधिकार हमसे ले लिया गया था। किसी सरकार के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी। आज हमें पुनः उसमें पूजा का अधिकार मिला है। इसके लिए हमारे सबूत थे कि वो हमारे हिंदू पक्ष का सबूत थे उसमें कि वो मंदिर था, और मंदिर ही है हमारा व्यास tehkana में। बहुत सारे साक्ष्य हमारे सबूत मिले हैं जिसके आधार पे हमें पूजा करने के लिए फिर इजाजत मिल गई है। हमारे दर्शकों को मंजू जी अगर आप बताना चाहें कि हाई कोर्ट के अंदर ऐसी क्या बातें उठी जिससे हाई कोर्ट को ये लगा कि नहीं, पूजा अर्चना वहां पर चलती रहनी चाहिए। जैसा कि आपने भी बोला कि 93 तक आपने वहां पे पूजा अर्चना करी, लेकिन उसके बाद आप लोगों पे पूजा अर्चना करने के लिए रोक लगा दी गई थी, और अब ये आप लोगों की एक तरीके से जीत है क्योंकि व्यास tehkana में अब आप जा सकते हैं, पूजा अर्चना वहां पर कर सकते हैं। जी, तो देखिए 93 तक तो हमारी पूजा उसमें हो रही थी, किसी मतलब सरकार द्वारा उस पर फिर रोक लगा दिया गया था। अब हमें पुनः उसमें मंदिर के जो हमारे सबूत थे वो सारे साक्ष्य हमारे मौजूद थे, और मुसलमान के पास इसका कोई सबूत नहीं था, तो उस अंजुमन पार्टी के पास इसका कोई सबूत नहीं था।
तो उसके कारण हम लोगों को पूजा का अधिकार फिर हमें मिल गया, क्योंकि हमारे सारे साक्ष्य मौजूद आज बिल्कुल भी है बिल्कुल मंजू और जी, आप अभी भी है। सबूतों की बात करिए क्योंकि आप पेटिशनर हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि वो क्या सबूत है। देखिए, उसमें सारे हमारे मंदिर था, त्रिशूल है, ओम है, स्वास्तिक है, मंदिर में अनगिनत मूर्तियां निकली हैं, अधिकतर हमारे शिव जी का शिवलिंग निकला है, 8 से ज्यादा की संख्या में शिवलिंग निकले हैं। उसमें सारे मौजूद हमारे, यानी कि एक अंधे को भी भेज दिया जाए, वो भी स्पष्ट करके बता देगा कि वो मंदिर है कि मस्जिद है, फैसला अपने आप निर्णय सामने आ जाएगा कि वो बिल्कुल। क्या है। और अब मुस्लिम पक्ष अगर अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट पर लेके जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में उस चीज को लड़ने के लिए क्या तैयारी हिंदू पक्ष ने करके रखी है, मैं वो भी जानना चाहूंगी आपसे मंजू जी। जी देखिए, वो कहीं भी जाए उसका हक अधिकार है, जा सकता है, जाने पे नहीं है, मगर कानून तो सबूत के आधारों पे चलता है ना, सरिया के आधारों पे नहीं चलता है, सबूत के आधारों पे चलता है। तो उनको मानना पड़ेगा कि वो मंदिर था और मंदिर है और मंदिर ही रहेगा, क्योंकि वो हमारा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, शिव की नगरी काशी पे बसी हुई है, इसलिए पूरा पूरा हक अधिकार हमारे हिंदुओं का है। क्योंकि अब हिंदुओं के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि अब हमें कितने सबूत और उनको देने पड़ेंगे। वो जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, फिर भी वो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे। आप उनसे कहिए आरोप लगाना बंद करें, जो हमारी I believe we lost connection with Manju ji over there, but we have another petitioner Seeta ji joining us on the broadcast as well. Seeta जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से आप देखती हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन जो है, जिसे हम कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष के लिए कि ये बड़ी जीत है और मुस्लिम पक्ष के लिए ये तीसरी बार उनकी हार है? देखिए, हार जीत की बात नहीं है, ये सत्य की जीत है। और वहां पर पूजा लगातार 93 तक हुआ है। एकाएक वहां प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई थी, तो वहां तो पूजा अगर हो रहा है और ये आया है तो ये तो आना ही चाहिए था, क्योंकि पूजा तो लगातार कभी बंद ही नहीं हुआ था। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूंगी, सनातनियों को बधाई देना चाहूंगी, ये सभी की जीत है। और मुस्लिम पक्ष से यही कहना चाहूंगी कि ये कहाँ तक जायज है कि नीचे पूजा हो और ऊपर नमाज पढ़ा जाए। तो आप लोग, और मैं ये कहना चाहूंगी कि न्यायालय सब कुछ देखता है, भारत देश है, यहाँ सभी धर्मों को सम्मान मिलता है, और सारे सबूत देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद ही फैसला आता है। तो सत्य जब सामने आया है तभी ये फैसला आया है। तो मुस्लिम पक्ष को भी हमारा सहयोग करना चाहिए, कम से कम अब उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे और वो सत्य को देखें और सत्य का साथ दें। जी, आप चाहती हैं कि मुस्लिम पक्ष भी आपका इस चीज में साथ दे, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो किस तरीके की तैयारी आपके पक्ष ने करके रखी है सीता जी? देखिए, हमारे अधिवक्तागण पूरी तरह से तैयार हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम पक्ष जाता है तो वहां भी हमें लोग की जीत होगी, क्योंकि सत्य पे बहुत दिन तक पर्दा नहीं डाला जा सकता है, अतः सत्य ही जीतती है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी मुस्लिम पक्ष, वहां भी हमें लोग की जीत होगी, और आगे भी जीत हम लोग की होती रहेगी, क्योंकि हम लोग के साथ भगवान महादेव स्वयं है। महादेव का साथ हम लोग को है, तो सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है, तो सत्य की जीत तो होनी ही होनी है। बिल्कुल सीता जी, लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना इस चीज पे बाकी है। अभी तो जाएगा उस तरफ मुस्लिम पक्ष इस केस को लेके, वहां पर जो सुनवाई होगी, ये बहुत जल्दी नहीं है आपका ये कहना कि हमारी ही जीत होगी, निश्चिंत रहे? जी बिल्कुल, क्योंकि देवों के देव महादेव हम लोग के साथ हैं, तो पूरा विश्वास है, पूरा 100% विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमें लोग की जीत होगी। और जीत तो पक्की है, क्योंकि सत्य को छुपाया झुठलाया नहीं जा सकता है। कुछ दिन तक उस पर पर्दा डाला जा सकता है, लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता। और रही बात न्यायालय की, तो वो सारी सबूत सत्य देखता है, उसके बाद ही फैसला आता है। तो सारे सत्य सब हम लोग के साथ है, तो इसलिए मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूँ कि जीत हम लोग का पक्का है, तय है। बिल्कुल सीता जी, और अब तो पूजा अर्चना वहां पर करने की परमिशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दे दी है, कहा है कि किसी भी तरीके की रोक उस पर नहीं लगाई जाएगी, खारिज करते हुए मुस्लिम पक्ष का जो कहना है उस चीज को। तो कैसा लग रहा है अब आपको, क्या अब आप जाएंगी वहां पूजा अर्चना करने के लिए? जाऊंगी, अपार खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और हम लोग मंदिर में ही बैठे थे, पूजा पाठ अर्चना कर रहे थे, मुझे पता था शिव हम लोग के साथ है, महादेव हम लोग के साथ है, जीत पक्की है। और